السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی. میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. معزز مہمان مقررین، معزز میزبانان محفل اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں فکر اقبال فاؤنڈیشن کا اور انجینئر خواجہ صاحب کا، کے تمام جو عہدیدار ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پہ دعوت دی اور صدارت کا اعزاز دیا. اور میں ان سے 2-3 دفعہ ایسے ہی طنزاً پوچھتا رہا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں کہ جی پنڈال بھر جائے گا، تو ماشاءاللہ انہوں نے پنڈال بھر دیا. کیونکہ ہمیں فکر اقبال کے علاوہ جو میرے اور ذمہ داریاں یا مصروفیات ہیں ان میں ایک ایسی بھی ہے جس میں ہمیں عادت ہوتی ہے کہ پنڈال بھرے ہوں جہاں جہاں اجازت ملتی ہے. بہرحال جی، آج کا جو موضوع ہے فکر اقبال کے تناظر میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے جو میں اس کو علامہ اقبال کی حیات و تعلیمات میں محیط کر سکتا ہوں، اور خاص طور پہ جو گفتگو پہلے یہاں ہو چکی ہے مختلف مقررین کے حوالے سے، اس کے پس منظر میں وہ میں آپ کو پیش کروں گا. ایک شعر سے شروع کرتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. حضرت علامہ اقبال جو کہ جب چھوٹے سے تھے تو اس وقت تو صرف محمد اقبال ہی کہلاتے تھے، تو محمد اقبال کو 4 سال کی عمر میں مدرسے میں ان کے والدین نے بھیجا، سیالکوٹ میں جو ان کی جائے پیدائش ہے. اور انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن مجید کی تعلیم سے کیا اسی مدرسے میں. اور اس 4 سال کی عمر سے جو انہوں نے وہ قرآن مجید سے آشنا ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، قرآن مجید سے فیض یاب ہوئے. تو قرآن مجید، بلکہ میں اکثر اپنی گفتگو جب بھی کرتا ہوں علامہ کے، خاص طور پہ ان کی زندگی کے بارے میں، تو میں یہی بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں 3 انسپریشنز تھیں، 2 روحانی اور 1 دنیاوی. تو جو عقیدت، جو محبت، جو احترام قرآن مجید کے لیے علامہ کی دل میں پیدا ہوا، وہ 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. یہ ان کی پہلی روحانی انسپریشن، پہلی انسپریشن اس قرآن مجید، وہ 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. اور تقریباً 61 برس کی عمر جب وہ آخری سانس انہوں نے اپنا لیا 21 اپریل 1938 کو، وہ ان کے آخری سانس تک وہ عقیدت جو ہے، وہ محبت جو ہے، وہ احترام جو ہے قرآن مجید کا، وہ ان کے ساتھ رہا، ان کے ہمراہ تھا. اور ان کی دوسری انسپریشن صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اپنے فارسی کلام میں ایک مقام پر وہ اپنی دونوں انسپریشنز کو کچھ اشعار کے اندر جو ہے محیط کرتے ہیں. میں مفہوم سے واقف ہوں جس میں وہ دونوں انسپریشنز جو ہیں وہ مخاطب ہیں، یا جس کا موضوع وہ دونوں انسپریشنز ہیں. مخاطب علامہ اقبال ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر. تو 2 جہان سے بنی ہے، من فقیر اور میں فقیر. از نگاہ روز محشر عذرهای یہ من پذیر، اور روز محشر میری معذرتیں قبول کر لینا. گر تو میبینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو میرا حساب کتاب کرنا ناگزیر سمجھتا ہے تو اس نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر، تو ان سے مجھے چھپا لینا، کہ ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا. پریکٹیکل مسلمان جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے. جہاں ہم کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز تا خدا بخشد تو را سوز و گداز. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صوفیزم کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا ہے لیکن بعد میں ایسا نہیں تھا، وہ اسے
अजमी तसव्वुफ़, वो अजमी तसव्वुफ़ और है जिसमें खानकाहों का तसव्वुर है, उसको नहीं पसंद किया जाता। अल्लामा इकबाल के बारे में बात हो और हम बात ना करें तो आप तो आशिक रसूल की हैसियत से अल्लामा इकबाल की सारी शायरी जो है कहीं भी हमें कुरान से हटकर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर कोई बात भी नहीं मिलती। अगर वो अमल की बात करें तो, अगर वो यगानत की बात करें तो, अगर वो उम्मत मुस्लिमा की बात करें तो, अगर शिकवा जब हम पढ़ें तो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उनकी अक़ीदत का ये आलम था कि जब वो फ़लस्तीन और मिस्र वगैरह का दौरा करके आए तो किसी ने पूछा कि भाई रोज़ा रसूल पर भी चले जाना था, तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए और आपने कहा कि मैं किस मुँह से वहाँ जाता। तो ये आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था। तो आप क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुजस्सम कुरान है, आपका उठना बैठना, आपकी पूरी ज़िंदगी और नज़ुल कुरान का फिर आपके ऊपर एक शर्फ़ और हमारा उम्मत मुस्लिमा होना हमारे लिए बज़ाते खुद एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात। जी, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है वहीद ख्वाजा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और आज की तकरीब के हवाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की तकरीब आपने इतनी शानदार की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये हमारी जो तकरीबात हो रही हैं ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अब यहाँ पे है, फिर इसके बाद हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में 2-3 डिपार्टमेंट्स ने कमिट किया हुआ है कि हमने करने हैं। इस तरह कासिम अली शाह फाउंडेशन में कमिटेड है अप्रैल के 2nd वीक में। तो ये मतलब हम कोशिश करते हैं कि लोगों को भी, ख़ासकर यंग जनरेशन को एजुकेट हो और इकबाल की डॉक्ट्रिन जो है उसका लोगों को पता चले कि कितने बड़े शायर थे, वो क्या कहते हैं। यानी इन्होंने इतनी मेहनत की, देखें काफ़ी इन्होंने इकबाल ने मेहनत की। 2 बड़े काम जो हैं, एक तो तख़य्युल पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल ने दिया, फिर उस तख़य्युल को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जिस आर्किटेक्ट का इंतखाब किया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, ये भी सही इंतखाब था। वो कहते थे ना इनायत किसी से डरता है ना बिकता है, ये बड़े लीडर की निशानी है। तो इसके बाद फिर मतलब उनका अपना अकीदा ये था कि हमारा जो अरूज है वो कुरान के साथ निस्बत में है। अगर हम कुरान के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ लें तो हम बुलंदियों पे जा सकते हैं। किताब भी वही है और चलती रहेगी, पर लोग ज़रा किताब से दूर हो गए हैं, लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन बस हमने कोशिश ये है कि हम जो शमा रोशन की है, जैसे मैंने कहा था तकरीर में, ये एक शमा रोशन की है। हम चाह रहे हैं कि इसको बुलंद से बुलंद तर करते जाएँ ताकि सारा माहौल जो है मुनव्वर हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम सीरत नबी के हवाले से था। फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं इकबालियात के हवाले से, इकबाल के हवाले से। तो आज तमाम लोगों की जो स्पीचेस थी वो इसी के से रिलेटेड थी कि कुरान साहिब कुरान। तो अल्लामा इकबाल क्योंकि आशिक रसूल भी हैं और आफाकी शायर भी हैं, शायर मशरिक भी, और अल्लामा इकबाल की सारी शायरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। वो चाहे आप कोई भी उनकी नज़म उठा लीजिए, और उनका वो शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं। तो आज के हवाले से सबका यही प्रोग्राम, और सब लोग मुकर्रर जो थे वो बहुत सब ने अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी उसमें अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बात की, और ये प्रोग्राम बहुत शुक्रिया आपने कंसिडर किया। मैं फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ और ये प्रोग्राम हमने आज करवाया था इकबाल की हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंजीनियर ख्वाजा वहीद साहब को, फाउंडर प्रेसिडेंट फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन, इस कामयाब प्रोग्राम के ऊपर। और इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में भी इस तरह के प्रोग्राम अपने माशरे में अपने लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले रिगार्डिंग इकबाल के, कि इकबाल ने किस तरह का काम किया हमारी कौम के लिए। तकरीब माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी, ख़ासकर इसका जो टॉपिक है कुरान और साहिब कुरान, और इससे खूबसूरत टॉपिक हो ही नहीं सकता। और स्पेशली डॉक्टर वलीद इकबाल जो हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत स्पीच की, और अपना डॉक्टर अल्लामा इकबाल के हवाले से उन्होंने बताया कि उन्हें हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और कुरान में जैसे कितनी अकीदत थी और मोहब्बत थी, और उनकी जो पोइट्री है वो भी उनके ऊपर अपना एक तरह की रेवोल्यूशन थी।
बहुत शानदार है। हमारे ये जो है आप जिनका ख्वाब का ताबीर हुआ है, इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब हमारे कायदे आज़म के राइट हैंड थे। पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत हिस्सा है, हमको बेदार करने में बड़ा हिस्सा है, और हम उनके मशकूर हैं, उनको भूल ही नहीं सकते। उनके हम नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह उनको हम कभी भूल नहीं सकते। ये पाकिस्तान को बुनियादी रखने वाले वो डॉक्टर इकबाल साहब और हमारे मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, और मैं बड़ा अप्रिशिएट किया, और बहुत स्पेशल इसके लिए आए हूँ कि डॉक्टर इकबाल साहब हमारे बड़े अजीम लीडर भी, राबर भी और बोल्डर भी हैं। सुल्तान मोबाइल होलसेल डीलर्स, मेन हॉल रोड, लाहौर। टेक्नो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, MI, नोकिया, वीवो तमाम मोबाइल होलसेल रेट पर दस्तयाब है। एड्रेस 3 मेन हॉल रोड, लाहौर। चेयरमैन चौधरी बिलावल। फोन नंबर 0423 7311 846।